recording. Okay. All right. पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम t जिसका टाइम पीरियड हो उसके बाद वही मोशन वापस से रिपीट होता है ना. So when a body or a moving particle repeats its motion after a definite path after regular intervals of time, motion is called periodic motion, and the interval in that time is called time period. ठीक है. Okay. It can be linear, circular, elliptical or any other curve. ठीक है. तो वो हो गया periodic motion. कोई भी काम, कोई भी motion जो repeat होता है exact same तरीके से but एक regular interval के बाद उसको हम कहते हैं periodic motion. Oscillatory motion है to and fro. Periodic motion जो है वो to and fro होना चाहिए क्या धृति? अच्छा, listen, everybody keep your microphone on so that it does not take time when I ask somebody a question. ठीक है? If there's no noise on your side, keep it on so that we can have a discussion. You don't have to give correct answer. You can just give whatever you think is the correct answer. Yeah, tell me. So there is construction work going on like on the floor above. So there'll be a lot of noise. That is why I'm अभी तो नहीं keeping आ रहा my ना mic noise. It's off. okay. चलेगा. अभी नहीं आ रहा तो अभी बोल रही हूँ. हाँ, तो ठीक है, जब आएगा तब बंद कर देना. बोलो. पीरियोडिक मोशन टू एंड फ्रो होता है क्या? हाँ. Anju Gupta, what do you think? Is periodic motion to and fro? I mean, is to and fro, is all periodic motion to and fro? No, not all periodic motion is to and fro. But to and fro motion is a part of periodic motion. हाँ, वो तो है ही. But is all periodic motion to and fro? What I asked was, is periodic motion to and fro? Not all periodic motion is What's to the and difference No, between? not all period. So what's the difference? to and fro can be pendulum. It can be. No, but what's the difference between a periodic and to and fro? Sid Merchant. Periodic can be like anything. Okay. I'm not sure, sir. But try a तो करो. periodic motion. Well, मतलब it could be basic concept, basic logic से क्या लगता है? It could be basically any distance traveled between one particular period does not necessarily have to go in one distance and come back the same way. That would be to and fro motion. Wait, say it again. What? So say we have an object, it has to travel a certain distance in one time period, right? That would be periodic motion. But it doesn't necessarily mean that it has to go that distance and come back the same distance. That would be to and fro motion. Exactly. So in to and fro motion, whatever path was covered from going from point A to B, the same path has to be covered from B to A. That'll be to and fro. But in periodic, there might not be an A and B, right? And hence the same path does not exist. So an oscillatory motion is a to and fro type of motion where a particle is oscillating between two fixed points. Okay? Oscillatory motions in which energy is conserved are also periodic, right? For example, motion of pendulum. The force torque directed towards equilibrium point acting in oscillatory motion is called restoring force torque. Okay. Damped oscillations are those in which energy consumed due to some resistive forces and hence total mechanical energy decreases and after some time oscillation will stop. So basically अगर एक इस तरह move कर रहा है, you're able to see my video, right? Yes, sir. Yes. Okay. So it's going like this. So obviously when it has reached here, then there has to be a restoring force which brings it back this side. Now it is in the mean position. From mean position, if it goes here, then there's a restoring force this side, right? So because the restoring force is there and the energy is not lost anywhere, it'll continue oscillating. But then there might be some places like friction here, wherever it's moving. तो यहाँ पे friction हो सकता है. उस friction के कारण energy इस system से lose हो रही है. तो उसको कहेंगे dampened. So there'll be dampened oscillations. So that's called dampening effect. Okay. Oscillatory equation: consider a particle free to move on x-axis is being acted upon by a force given by F equals to minus kx to the power n. So basically a force
किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन से वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है फोर्स? बोलो। Displacement. Displacement. डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेयर? Mean position. From करेक्ट, mean position. करेक्ट. Okay, let me just set this up. I'll set up my writing pad. Okay. तो जितना डिस्प्लेसमेंट है उतना ज्यादा फोर्स होएगा कि उतना कम फोर्स होएगा? जितना ज्यादा Directly डिस्प्लेसमेंट है, ज्यादा, more more हाँ? force. More. मोर नहीं, sir, I don't फोर्स, understand. ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट मोर फोर्स. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल ये Yes, sir. अगर मीन पोजीशन है, ओके. तो अगर ये मीन पोजीशन है किसी की, ये मीन पोजीशन है किसी की, तो यहां से वो मूव करेगा, अगर इस तरफ मूव करता है तो ये तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया. सपोज डिस्प्लेसमेंट 4 है और यहां तक इसका डिस्प्लेसमेंट था 2. ठीक है. तो यहां तक 2 था, यहां तक 4 है. तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो 4 पे ज्यादा होगा, है ना. बट उसका जो डायरेक्शन है वो माइनस पे, तो इसलिए वो यहाँ पे ज्यादा फोर्स होगा और यहाँ पे कम फोर्स होगा. ठीक है. लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स है. और अगर ये माइनस की साइड में आ जाता, यहाँ पे आ जाता और यहाँ पे आ जाता, तो ये माइनस पे होता, तो रिस्टोरिंग फोर्स प्लस पे आ जाता, तो इधर होता रिस्टोरिंग फोर्स. ठीक है, ज्यादा. तो जितना दूर होते जाएगा उतना ज्यादा फोर्स रिस्टोरिंग लगता जाएगा. तो रिस्टोरिंग फोर्स के कारण यहाँ पे माइनस है. ओके, ठीक है. above equation is called oscillatory equation. Okay. Here k is positive constant and x is the displacement from the mean position. Now, following cases are possible depending on the value of n. अब बताओ क्या क्या हो सकता है? वैल्यू ऑफ n से क्या फर्क पड़ेगा? इधर कुछ फर्क पड़ेगा क्या? Yes, sir. क्या फर्क पड़ेगा? Sir, if we Sir, have बोलो x बोलो. will be raised to n. So if x will be raised to n, then the value of x will also be changing. नहीं, वैल्यू ऑफ x will not change. वैल्यू ऑफ n is changing. उसके कारण वैल्यू ऑफ f is changing. But I am saying डायरेक्शन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? Not in direction. Oh wait, it will be in direction because it can be, if it is even number, then it will Exactly. become positive. एग्जैक्टली. तो अब एक जगह पे x अगर हम माइनस लेते हैं, जहां पे हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, लेट मी जस्ट राइट इट हियर. तो व्हेन x इज नेगेटिव, तो उसमें क्या होगा? अगर n इवन है तो f क्या होएगा? n इवन है और n ऑड है, x नेगेटिव है, f का क्या डायरेक्शन होगा? साइन क्या होगा f का? Opposite. अगर इवन है तो In direction. Negative. Positive. Negative. तो n अगर इवन है तो f विल ऑलवेज बी नेगेटिव. Negative. ठीक है. और यहाँ पे अगर n ऑड है तो Positive. ठीक है, तो f विल बी पॉजिटिव. तो दोनों में, और जब x पॉजिटिव है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना. ठीक है. तो अगर n ऑड है, इसका मतलब वो रिस्टोरिंग फोर्स नहीं रहेगा हमेशा, राइट. वो हमेशा उसको इधर ही खींचता रहेगा, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगता रहेगा. वो हमेशा जब आगे जाएगा तो यहाँ पे रिस्टोरिंग लेगा और फिर वापस जाके फिर सिर्फ इस डायरेक्शन में पीछे निकलना शुरू हो जाएगा, राइट. तो n हैज टू बी ऑड. ठीक है. तो अगर n इवन है तो इट ऑलवेज कीप मूविंग रेक्टिलिनियरली अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट. If n is odd integer, then it will come in, it'll be, there'll be a restoring force. But जब n equals to 1 होता है तो it is in SHM. ठीक है. मेरा ये डिस्प्ले जा रहा है. ओके. तो लिख लो ये f equals to minus kx. When the restoring force F is equals to minus kx, then the motion is SHM.
That is the definition of SHM. F is equals to minus kx. If the restoring force F is equals to minus kx, then the motion is in SHM. ठीक है? टॉर्क भी कर सकते हो वैसे, उसी तरह से रिस्टोरिंग टॉर्क भी हो सकता है. ओके, ठीक है. टाइप्स ऑफ एसएचएम, लीनियर हो गया ऐसा, है ना. एंगुलर हो गया. एंगुलर कैसा दिखेगा, विजुअलाइज कर पा रहे हो? When body is free to rotate about a given axis executing angular oscillation. ठीक है, क्या है? तो ऐसा आएगा. तो विजुअलाइजिंग दी मूवमेंट. तो देखो ये है मीन पोजीशन, ये इसका एक एक्सट्रीम पोजीशन, या फिर यहीं से कर लेते हैं ना. चलो, ये इसका है मीन पोजीशन, ये इसका एक एक्सट्रीम पोजीशन, ये इसका एक और एक्सट्रीम पोजीशन. अब बताओ क्या होएगा. तो यहां से जब वो निकलेगा, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी कि ज्यादा होगी, कम होगी, क्या होगी? माइनस जेन बताओ. मीन पोजीशन पे मेन पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होगा. जीरो होगा. तो अगर जीरो होगा तो मूव क्यों करेगा यार? मीन पोजीशन पे फोर्स कितना होगा? रिस्टोरिंग Extreme फोर्स टेंशन. कितना होगा? मीन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है. जीरो. तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो माइनस के एक्स, तो जीरो ही होगा जीरो. यहाँ पे. तो ये तो मूव ही नहीं करेगा. तो यहाँ पे मूव कराने के लिए हमको उसको कोई वेलोसिटी देनी पड़ेगी. ठीक है, तो अभी वीडियो लगाता हूँ अपना. देखो, ये देखो यहाँ पे ये ऐसे है मीन पोजीशन पे, अभी हिल तो नहीं रहा ना. इसको मैं क्या करूंगा, इसको वेलोसिटी दी मैंने, फिर क्या हुआ, वापस आया. रिस्टोरिंग फोर्स क्या है यहाँ पे, कौन बता सकता है फटाक से? कौन बताएगा? इशिता बताओ यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या है. मैंने इसको वेलोसिटी दी, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? और ग्रेविटी. करेक्ट, वेरी गुड. वो ग्रेविटी के कारण वापस आ रहा है. और अगर यहाँ पे मेरा फ्रिक्शनलेस होता पूरा, तो वापस आता और यहाँ पे उतनी वेलोसिटी से आगे बढ़ जाता, फिर वापस Yeah. आता, आगे बढ़ जाता. राइट. तो यहाँ पे पहले मैं उसको वेलोसिटी दूंगा तभी तो एसएचएम होएगा ना. तो यहाँ पे मैंने उसको वेलोसिटी दी, कितनी दी? v0. ठीक है. ओके, एवरीबॉडी गेटिंग इट? ठीक है. हर कोई अपना माइक ऑन रखो ना, तो फिर मैं तुमसे बात कर पाऊंगा. फटाफट इंटरैक्ट करेंगे तो ज्यादा Yes, मजा sir, आएगा. getting it. फिर क्या होगा, तो फिर यहाँ पे ऐसा मूव करना शुरू हुआ, और जैसे मूव करना शुरू होगा तो ये जो फोर्स पहले इतना लग रहा था अब और बढ़ गया, यहाँ पे और बढ़ गया, यहाँ पे और बढ़ गया, क्योंकि फोर्स डिपेंड्स ऑन एक्स, रिस्टोरिंग फोर्स, है ना. तो यहाँ पे फोर्स बढ़ते गया, मतलब इसका एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, लेफ्ट की राइट? बताओ अंश गुप्ता, लेफ्ट या राइट? एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा इसका, लेफ्ट या राइट? I'm not really that sure. हाँ, I'm not sure. अच्छा, अभी तक हुआ क्या ये तो बताओ मेरे को. यहाँ पे व्हाट ऑल हैज हैपेंड? अंश गुप्ता, यहाँ पे एक बॉडी हमने रखी मीन पोजीशन पे, फिर हमने उसको क्या किया? Extreme position. हाँ, We move it to the Velocity. let अंश स्पीक. हाँ बोलो. we moved it to the extreme position. No, we did not We- move it to extreme we- position. we, I said we by gave it velocity. velocity v0. We gave it velocity v0, जिसके कारण वो इधर मूव करना शुरू हो रहा है. बट जैसे जैसे मूव करना शुरू हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ते जा रहा है इस पे. राइट. तो मेरा सवाल ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ है, तो एक्सीलरेशन किस तरफ होगा इस बॉडी के लिए? So in the opposite direction. एग्जैक्ट ऑपोजिट. किस, कौन से, लेफ्ट की राइट? So opposite to the force. यार जिस तरफ फोर्स So उस तरफ that- एक्सीलरेशन होगा ना. ऑपोजिट टू द फोर्स क्यों एक्सीलरेशन होगा? फोर्स जिस तरफ होता है उस तरफ ही तो एक्सीलरेशन होता है. F = ma. तो वेलोसिटी इस Yes. डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो एक्सीलरेशन भी इस डायरेक्शन में ही होगा ना. Yes. राइट. तो जब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी कम होती जाएगी कि बढ़ती जाएगी? So कम होएगी. कम होती जाएगी, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो हो जाएगी, वो उसका एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगा. ठीक है. Yes. तो यहाँ पे आया. अब मुझे बताओ, यहाँ पे वेलोसिटी हो गई जीरो. अब यहाँ पे जीरो हो गई, लेकिन फोर्स तो यहाँ पे लग रहा है बहुत बड़ा सा. तो एक्सीलरेशन कौन से Yes. डायरेक्शन में होगा? अभी भी लेफ्ट So डायरेक्शन में ही है. force के direction में. ठीक है, लेफ्ट की है.
तो इसका मतलब यहाँ से एक्सीलरेशन हो रहा है, यहाँ पे 0 है वेलोसिटी, तो ये बढ़ते जाएगा, वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ते जाएगा, फिर यहाँ पे कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, वापस से v0 हो जाएगी, बिकॉज V0. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब वो जब इस तरफ आएगा, फिर ये इस तरफ आएगा, है ना। तो अब जैसे ही इस तरफ आएगा, फोर्स किस तरफ, फोर्स अपना डायरेक्शन Right. चेंज कर लेगा, फिर बढ़ते जाएगा, फिर बढ़ते जाएगा, फिर वैसे ही होगा यहाँ तक। सेम जो फिनोमिना अभी राइट में हुआ था वो लेफ्ट में होगा, राइट। तो अब इस केस में वेलोसिटी इधर रहेगी, लेकिन एक्सेलरेशन इधर रहेगा, क्योंकि फोर्स इस तरफ है, राइट। ठीक है, और यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 होगी, तो ये भी एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। तो ये जो है इसको हम कहेंगे मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिस्टेंस है, इसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। नोट कर लो उसको अपनी कॉपी में तुम लोग। जैसे मैंने फोर्स बनाया है, बढ़ते जा रहा है ना फोर्स, और जिस डायरेक्शन में v है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, f इक्वल टू 0 है, यहाँ पे f इक्वल टू मैक्स है, यहाँ पे फोर्स सबसे ज्यादा है ना, यहाँ पे और यहाँ पे, राइट। वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा बताओ मेरे को, मीन पोजीशन पे या एक्सट्रीम पोजीशन पे, बताओ इशिता, वेयर विल एक्सीलरेशन बी द हाईएस्ट? So extreme position. In the या इशिता? 1 second. So acceleration will be highest in the mean position. एक्सीलरेशन किस पे डिपेंड करता है इशिता? it Acceleration depends force on- upon mass, right? Yeah, Mass is only a scalar quantity. constant. Yeah, yeah. ठीक है, इसका मतलब जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा एक्सीलरेशन होगा ना भाई। अभी फोर्स यहाँ पे Yes. मैक्सिमम है ना, तो यहीं पे एक्सीलरेशन भी मैक्स होगा ना, हाँ, okay. So in यहाँ the पे extreme वेलोसिटी मैक्स होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू Okay. मैक्सिमम यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सीलरेशन इक्वल टू मैक्सिमम। ये सब नोट कर लो, और लेकिन ये खुद से Okay. सही से बताना चाहिए था ना तुम लोग को। Yes. ये मैक्स है, ये मैक्स है, ये मैक्स है, ये मैक्स है, ये Sir? मैक्स है। हाँ Oh, what is amplitude? हाँ, एम्पलीट्यूड इज What द is डिस्टेंस amplitude? बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। Okay. अच्छा मुझे बताओ कि एक्सेलरेशन 0 कहाँ पे होगा? Center mean position. Mean करेक्ट, position. क्योंकि यहाँ पे f 0 है, तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा यहाँ पे ना, Yes, sir. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 भी है यहाँ पे, है ना। ठीक है, हो गया, फिर आ गया समझ में इतना सबको? So just a minute, I'm writing it down. हाँ कर लो, अच्छे से लिख लो। Done, sir. ओके, और जो टाइम लगा मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन, फिर मीन पोजीशन से लेफ्ट वाला एक्सट्रीम पोजीशन, लेफ्ट वाला एक्सट्रीम पोजीशन से यहाँ तक, ये जो पूरा टाइम लगा इसको कहेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, इसका मतलब जो टाइम पीरियड का हाफ होगा वो होगा मीन पोजीशन से एक्सट्रीम से वापस मीन तक, ये हाफ होगा, और क्वार्टर जो होगा t/4, ये t/4 है ना। तो ये t/4 टाइम लगा, फिर इसमें t/4 टाइम लगा, फिर इसमें t/4 टाइम लगा, फिर इसमें t/4 टाइम लगा। ठीक है, ऐसे से करके पूरा टोटल t टाइम लगा। डन, आया समझ में? Yes, sir. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। A to B, B to A to C, C to A, ऐसा है। ठीक है, पाथ इज स्ट्रेट लाइन ओनली, ये सिर्फ इसको ऐसे बता रहा है। ओके, मोशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम A to B, अब ये तो हमने कर लिया अभी, है ना, सब ये पूरा समझ लिया ठीक से। तो वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन कौन से डायरेक्शन में, पता चलते जाएगा। मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, आ गया सब कुछ समझ में? इतना आ गया, ये एम्पलीट्यूड समझ में आ गया ना, एक्सट्रीम पोजीशन माइनस मीन पोजीशन, दैट्स योर एम्पलीट्यूड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एनी आइडिया?
What is frequency? Yeah, the amount of oscillation in 1 second in per unit Oscillations time. per unit time is frequency. ये note कर लो as oscillations per unit time is frequency. Oscillation per unit time is frequency. ठीक है, तो देखो एक ऑसिलेशन करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है? एक ऑसिलेशन करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है? कौन? हाँ, टी टाइम ना, टाइम पीरियड, टी टाइम लगा है ना, टाइम पीरियड लगा। तो 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन करेगा वो? 1/t ऑसिलेशन, राइट? यस सर। इसलिए ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। 1/t इज फ्रीक्वेंसी, यूनिट होता है उसका हर्ट्ज। 1/second इज इक्वल टू हर्ट्ज। ओके, time period is smallest time interval after which the planetary motion oscillatory motion gets repeated. ठीक है, okay. T equals to 2 pi by omega. Omega के angular velocity. चलो, अब बताओ, ये सवाल करो। Describe the motion of a particle acted upon by a force. F equals to 3x plus 3, F equals to minus 3x. इनमें से कौन कौन से अच्छा एनीवे बताओ, क्या कैसे कैसे होएगा, क्या क्या मोशन होएगा, बताओ। Sir, describe the type of motion मतलब? कैसा मोशन होगा उसका? लीनियर मोशन होगा, ऑसिलेटरी okay. मोशन होगा, एसएचएम होगा, क्या होगा? सर कैसे फाइंड आउट करेंगे? F इज इक्वल्स टू हाँ। माइनस के एक्स से शायद उससे पता लगे। ये देखो यहाँ पे फोर्स एक्स पे डिपेंड करता है, पहले वाले पे, हाँ, Yeah. Yes. और हमेशा बढ़ते ही रहेगा, एक्स बढ़ते जाएगा तो, लेकिन एक्स So, कम होएगा तो linear. इधर भी हो जाएगा। देखते हैं ना, चलो यहाँ से अगर हमने 0 से चालू किया उसको, तो फिर क्या होएगा? 0 रहेगा तो 3 न्यूटन फोर्स है इसका, एक्स 0 है तो इसका मतलब फोर्स इधर लगेगा तो Yes. इधर जाना शुरू होगा। उसके बाद जैसे जैसे एक्स बढ़ते जाएगा उसका फोर्स और बढ़ते जाएगा, तो जोर से जाएगा इधर, है ना। और अगर नेगेटिव में जाता, नेगेटिव -3 से चालू करते इसको, तो 0 फोर्स होता, मूव नहीं करता। लेकिन -4 से चालू करते अगर, तो क्या होता? एक्चुअली नहीं, -3 से चालू करते तो 0 नहीं होता, 1/3 से करते तो, बट एनीवे -3 से करते तो नेगेटिव फोर्स होता है ना। Yeah. नेगेटिव फोर्स होता तो Yes. क्या होता? इधर जाते जाता। तो यहाँ नेगेटिव से चालू करोगे तो इधर जाएगा, यहाँ से करोगे तो लीनियर मोशन हुआ, है ना, पहले वाले का। दूसरे वाले का क्या हुआ? Yes, इसको हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू -3 फिर x + 1, राइट? Yes. गेट इट? Yeah. Yes, sir. तो अब मुझे बताओ कि या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं F इक्वल्स टू माइनस, क्या हमने बोला था? kx बोला था ना, तो ये -kx वाले फॉर्मूले में आ गया ये। यस सर। तो अब इसका मीन पोजीशन कहाँ पे होगा? बताओ। x + 1। नहीं, मीन पोजीशन वहां पे होगा जहां पे F0 होगा ना, मतलब x इक्वल टू -1 पे होगा। तो अगर ये हुआ तो x इक्वल टू -1 पे 4 0 होगा, है ना। गेटिंग इट गाइस? x इक्वल टू -1 पे 4 0 होगा ना भाई, Yes, sir. और x इक्वल टू 0 पे कोई फोर्स रहेगा ऑफकोर्स, -3 फोर्स Right. रहेगा, तो इस तरफ रहेगा, है ना। Sir, if it is x is equal to 0, it won't be -3. It will be. It will- it will be -3. Sorry. या एल बी -3, ठीक है। तो ये हो गया ऑसिलेटरी, है ना, ये हो गया एसएचएम।
जहाँ पे मीन है मीन एट -1, है ना? ये हो गया। वैसे अब ये वाला बताओ मुझे। चैट पे आंसर दो। गिव मी द आंसर ऑन चैट। देखते हैं कौन सबसे पहले देता है, जल्दी बताओ कौन सा टाइप का मोशन है, और अगर SHM है तो Sir, उसका मीन क्या होगा? scroll a नहीं, little चैट down. चैट चैट। Arey, I'm not answering. I'm telling you to scroll down. Wait. चल बताओ यार, इतना टाइम हो गया। सिद्ध मर्चेंट, वेयर आर यू? वेयर हैव यू रीच्ड? Right here, but I'm a little confused because I actually lagged out for some time, so I was a little lost. So should I explain to you? Yeah. So what I explained here in this one is that you took it as f equals to -3x plus 1, right? This is the equation for this. Now this comes in the form of f equals to minus kx, right? Now, which means that this is SHM. But what is the, which is the mean position here? So to find the mean position, the force in that position should be 0, which means -3x minus 3 is equals to 0. So -3x is equals to +3, x equals to -1. So that will be your mean position, right? Which means this is this is the origin. So this is where force will be 0, and then if the body moves from here, it'll actually go in SHM like this, and this will be your mean position, right? This is how we figured for B. So I want to know what kind of motion is C, quickly. धृति Wait. सिंपल हार्मोनिक है, वो SHM, SMH नहीं है, SHM है। और दूसरा मुझे बताओ मीन पोजीशन क्या है उसकी। हाँ बोलो सिद्ध मर्चेंट। Is it so when you have x equals -1, can we say that it's SHM or Yes, is it? that's the definition of SHM, right? That's what we studied just now. F equals to minus kx. If that's the restoring force, then the motion will be SHM. Sir, third one will Yeah. also be SHM. Mean position क्या है उसकी? Mean position will be wait, -3 common 6 plus अरे चैट में बताओ भाई। 1. मयल जैन अरे यार चैट पे बताओ, चैट पे। So what are the equations for the other types of motion? If F equals to ma directly, then it will be linear motion, Okay. where m is the body and a will be the acceleration. For example, this one, F equals to 3x plus 3. Were you not there for this example also? So in this case, if That's why. F I don't know just how keeps increasing with x, and if x is negative, then force will be negative. So basically in this case, it'll always be linear motion. Yeah. Ishita, why do you think this is linear? So wait, I'll do it again. See, F equals to minus 3x plus 3. Basically, it can be put in this form, minus 3, फिर x minus 1, ये हो गया ना? तो ये F equals to minus kx के फॉर्म में आ गया ना?
Oh, Now, okay. what will be the mean position here? X minus 1 should be 0, which means x is equals to 1 is your mean position. खत्म. Yeah. फिर तो ये SHM हो गया, ये SHM हो गया, या धृति की लैंग्वेज में SMH हो गया. So that was Or- by mistake. Good that this is by mistake. If this is what you had understood, then तो फिर कुछ और ही प्रॉब्लम होती ना. By mistake ही होगा. Sir, autocorrect. Oh, अच्छा. What about this D? Sir, SHM. नहीं, ये x के Sir, साथ what माइनस are- थोड़ी है. So D is linear. Yeah, Sir, I D is said linear. linear for D. huh? Again linear. हाँ. Sir, I said linear for D. अच्छा, I you said said D. SHM अच्छा, मेरे को लगा you said C का linear. Okay, cool. हाँ. ठीक है, cool. ठीक है. So Ishita is correct. तो फिर क्यों बोला तुमने I'm solving again? तो कॉन्फिडेंस Sir, से I बोलो thought ना. it was a mistake. नहीं, ऐसे थोड़ी होता है. ठीक है, एक स्टोरी सुनाता हूँ. चलो. In fact, that's something that I was reading in the morning. That's crazy good. So there's this brilliant book which I'm reading. This Bold. And I was reading, and normally I say out loud when I'm reading a book. I say it out loud. And there was this word called gullible. But when I said gullible slowly, it sounded like orange. And it was very fascinating. So I thought I'll share with with students that when you say gullible, but slowly, you say it slowly, it sounds like orange. That's amazing, right? Sir, how like Sir, it is not even close. I mean, Sir, how does it sound like orange? It does. it doesn't. No. It doesn't. Of course it does. You say No, it gullible doesn't. slowly, it sounds like How orange. slow? No. Try it. And at what pace? What gullible? I mean, it's gullible only. Do you know what gullible means? I think somebody who is very easily Deceived. Who's easy to influenced be or made a fool of. Easy to Somebody who manipulate agrees very and easily, or somebody who, Yes. who Yeah. believes in it very easily. Somebody who believes. easy to Oh. manipulate. No, easy to believe. Manipulate. अब उस belief के साथ तुम उसको manipulate करो या सही information हो तुम्हारे ऊपर है. But gullible is somebody who believes things very easily. Get it? So who's gullible? Are all I those tried, who but thought, I oh, can't it can sound like orange. Let me try gullible. Right? I mean, orange has R. I mean, Okay, Exactly, I it got cannot, what- right? So then what's up? But anyway, it got came from what sir is that. trying That to I do. remind. So yeah, so this. So I I got reminded of this because of Ishita. Because when I said linear कैसे, and she like, oh wait, let me try it out. Be Sir, I confident, thought na? I made a mistake, sir. I was just rechecking it. हाँ, चलो ठीक है. That's fine. It's good to always check your mistakes. ठीक है? ये हो गया. इस वाले केस में क्या होगा? It does not perform SHM. B अपना क्या आया था? Performs SHM. C भी क्या आया था? Performs SHM. D में क्या आया था? नहीं, है ना? अपना नहीं आया था. Wait, वीडियो ऑफ करना पड़ेगा. ठीक है? Does not perform SHM. इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? ये है F इक्वल्स टू माइनस के एक्स. अब देखो, एक कोई बॉडी है, ये बॉडी है ना, ब्लू कलर की बॉडी है, और इसको हमने SHM करवाया है. यहाँ से लेके यहाँ तक उसको जाना है, और ये बॉडी रखी है यहाँ पे. और इस बॉडी का मास कितना है? इस बॉडी का मास है m. ठीक है? तो यहाँ पे कहीं पे भी उसके ऊपर फोर्स जो लग रहा होगा वो कितना लग रहा है? यहाँ पे लग रहा है फॉर एग्जांपल माइनस के एक्स फोर्स लग रहा है ना. F इक्वल्स टू माइनस के एक्स फोर्स लग रहा है. तो ये बट इस पे एक्सेलेरेशन कितना प्रोड्यूस होगा? यहाँ पे ma का एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा इसके ऊपर. तो ma इक्वल्स टू माइनस के एक्स, राइट?
इतना नोट कर लो. हो गया? जब ये नोट हो जाए तो हाथ उठा दो. सर नोट हो गया. दैट नहीं, हाथ उठा दो ना भाई. इंस्ट्रक्शन दिया वो फॉलो करो. क्या हो धृति, हाथ नहीं उठाए? अंशु गुप्ता. अंश गुप्ता. सर 1 मिनट सर. ओके. ओके, हो गया सबका. आप नीचे करो. लोअर ऑल हैंड्स. ओके. सो बेसिकली देन व्हाट विल हैपन, एक्सीलरेशन को हम उस फॉर्म में लिख देंगे d2x by dt स्क्वायर, है ना. सो m d2x by dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस kx. तो इसको इधर ले आते हैं, d2x by dt स्क्वायर प्लस k by m x इज इक्वल टू 0. तो ये डबल डिफरेंशिएशन है. ठीक है. सो इसका सोल्यूशन याद करना होता है ऐसा, क्योंकि ये अभी तुम्हारे कोर्स में नहीं है. तो बेसिकली d2x by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0 का सोल्यूशन होता है x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5. इसको नोट कर लो. इस फॉर्म में अगर कोई चीज लिखी है तो इसका इक्वेशन होगा ये. ठीक है. d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x. ये आसान है याद करना ऐसा, माइनस ओमेगा स्क्वायर x. अगर है किसी की इक्वेशन तो वो हो जाएगा SHM, और उसका सोल्यूशन होगा ये x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5 वेयर ओमेगा इक्वल्स टू रूट k by m. क्योंकि ये आगे भी आएगा, 12th में भी आएगा. हो गया? हो जाए तो हाथ उठा दो. Yes, sir. सर एक अच्छे से मिनट. नोट कर लो, गो थ्रू इट, याद कर लो इसको. a sin ओमेगा t प्लस 5 वेटिंग फॉर सिड मर्चेंट. So what is this equation for? What is this? Equation for. Couldn't understand what you said. Sir, he is asking what is this equation for? This is, if this is the equation of the motion, x on the basis of time, when we know the restoring force, which is in the form of minus kx. ये किया ना ऊपर, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स है. अब इतना ऐसा कोई फोर्स लग रहा है तो कैसा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा, एम ए करेगा. एम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स, राइट. ए इक्वल्स टू माइनस के बाई एम एक्स. ठीक है. अब ए को हम क्या लिख सकते हैं, d2x बाई डी टी स्क्वायर. ये समझ में आया. d2x बाई डी टी स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, इसको dv बाई dt लिख सकते हैं. बट dv क्या है, dx बाई dt. तो इसलिए d2x बाई dt स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू माइनस के बाई एम एक्स. बट अगर कोई इस तरह का इक्वेशन होता है, d2x बाई dt स्क्वायर, d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ऐसा कोई इक्वेशन होता है तो उसका सोल्यूशन होता है x इक्वल्स टू a sin ओमेगा d प्लस 5. तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर को k माइनस के बाई एम के साथ अगर तुम माइनस ओमेगा स्क्वायर को माइनस के बाई एम के साथ अगर तुम मैच करोगे तो ओमेगा इक्वल्स टू रूट ओवर के बाई एम आएगा. गॉट इट? दिस इज हाउ. सो दिस टेल्स अस द पोजीशन at a particular time. Got it? Sid Merchant still waiting for you.
Sid, are you there? Is it the position of a particle or a position? Position of the particle which is in SHM. So position of anything that is being pushed with F, that force. Which force? Minus kx force. So if something is being pushed by minus kx force, where will it be at time t? Like you have that equation ना, v कितना होगा उसका velocity अगर linear पे जा रहा है तो v equals to u plus at है. कौन से position पे होगा? S will be equal to ut plus half at square, right? Similarly in this case, S or x here will be a sin omega t plus phi, because the force is changing and its direction is also changing. Got it? Everyone got it? चलो, तो ये हो गया. So इसको कहते हैं फेज एंगल. ओमेगा टी प्लस फाइव इज दी फेज एंगल. फेज एंगल का मतलब होता है, तो चलो बताते हैं तुम्हें फेज एंगल का क्या मतलब होता है. बम बम बम. ओके, ये ओके. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखो. ठीक है, सपोज एक बॉडी रखी है यहाँ पे. ठीक है, एक बॉडी रखी यहाँ पे और ये बॉडी ऐसे मूव करती है यहाँ से यहाँ. ठीक है, गेट इट? यस सर. Yes, sir. और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ से आता है, इधर से. अब ये जो उसका फोर्स है वो ऐसे चला रहे हैं उसका फोर्स, ऐसा. ठीक है, तो फोर्स ऐसा चला रहे हैं, बट ये बॉडी सिर्फ यहाँ पे मूव कर सकती है क्योंकि ये थिंक ऑफ इट एज अ रिंग, और ये एक रॉड है जिस रिंग पे उसको चलना है. ठीक है, जिस पे रिंग चलेगा. ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो ये मूव करेगा क्या कहीं पे भी? हाँ, यस सर. कैसे मूव करेगा भाई? फोर्स इधर लग रहा मतलब है. इस अभी नहीं करेगा, मतलब जब बाहर अभी नहीं force करेगा. ठीक है, ऊपर तो यहाँ फोर्स लग रहा है लेकिन इधर तो मूव ही नहीं कर सकता. मूव सिर्फ ऊपर नीचे कर सकता है. फिर थोड़े टाइम के बाद फोर्स यहाँ पे पहुंचेगा, तो इसका कौन सा, इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट के कारण वो मूव करेगा? ये वाले कंपोनेंट के कारण. तो ये अगर एफ लग रहा था यहाँ पे, ठीक है, और अभी ये एंगल थीटा बना रहा है, तो एफ कॉस थीटा से मूव करेगा. आ रहा है दोनों? हाँ गाइस, तो देखो इसने अगर थीटा एंगल मूव किया अभी और यहाँ पे फोर्स एफ लग रहा है. इशिता कमेंट. Yes, sir. ये फोर्स एफ लग रहा था और ऐसे लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ इधर ही मूव कर सकता है. तो इसके अलावा ये यहाँ पे उसका क्या रिजल्टेंट फोर्स लगेगा? इस एफ का यहाँ पे क्या फोर्स लगेगा? एफ साइन थीटा लगेगा ना, F sin theta. Yeah. राइट? क्योंकि ये वाला पार्ट एफ साइन थीटा हो जाएगा और ये वाला पार्ट एफ कॉस थीटा हो जाएगा. और ये जो एफ कॉस थीटा है वो उसको इधर पुश करने की कोशिश करेगा, उससे वो होएगा ही नहीं पुश, क्योंकि सिर्फ यहीं पे मूव कर सकता है, ऊपर नीचे. एफ साइन थीटा. इसका मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ता जाएगा, और जैसे थीटा 90 होगा तो ये एफ पूरा एफ बन जाएगा, और जैसे हाँ. यहाँ पे एफ जीरो हो जाएगा. तो अब ये जो फोर्स लग रहा है तुम्हारा, वी कैन से कि ये एफ इक्वल टू माइनस के एक्स के फॉर्म में लग रहा है, Yes. राइट? So simple harmonic motion. ठीक है, आया माया समझ में? धृति, अंश, आया समझ में? Yes, sir. तो ये जो सिमुलेशन है, अगर हम सर्कुलर में फोर्स घुमा रहे हैं लेकिन जो बॉडी है वो सिर्फ एक लाइन में घूम सकती है अक्रॉस डायमीटर, तो वो एसएचएम की तरह मूव करेगी, है ना? और ये जो एंगल है इसका, ये उसका हो जाएगा फेज एंगल. इसको कहेंगे फेज. अभी ये इस फेज पे, फिर ये इस फेज पे आ गया, फिर ये इधर फेज पे, फिर ये इधर फेज पे. जो ये जितना भी एंगल ट्रैवल करेगा वो उसका हो जाएगा फेज. ठीक है,
और ये जो फाई है ओमेगा टी प्लस फाई विल बी इक्वल टू थीटा, गेट इट? सो ये ओमेगा टी प्लस फाई विल बी इक्वल टू थीटा, यहाँ पे ये वाला थीटा, और जो फाई था वो इनिशियल एंगल था, इनिशियल फेज था, जो t इक्वल टू 0 पे जितने एंगल पे रहेगा, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे थीटा विल बी फाई, है ना? सो दैट विल बी द इनिशियल फेज। और ओमेगा टी प्लस फाई कौन सा फेज होगा? फेज एट टाइम t, ठीक है? तो दिस इज फेज एट टाइम t एंड दिस इज फेज एट t इक्वल्स टू 0। दैट्स वाई इसको कह रहे हैं इनिशियल फेज। आया समझ में? हाँ, Riti? So can you repeat? I mean, I understood, but I didn't understand. I Explain don't know to how me to what you explain understood. it. Explain to me whatever you understood. I don't know how to explain it. Arey, say whatever you want to say. Yeah. Okay, fine. I'll explain it with another. Dhriti, keep talking to me. Okay, sir. Suppose ये वाला लेते हैं, लीनियर मोशन। पहले अभी हमने सर्कुलर वाला लिया, लीनियर वाला लेते हैं, ठीक है? Okay, sir. ओके, अब ये बॉडी अगर यहाँ पे है, ये 0 है, ठीक है? ये 0 है, यहाँ से फिर इधर x है पॉजिटिव, इधर नेगेटिव है, ठीक है? ओके, तो अब x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ओके? ये Yes, sir. इक्वेशन है x की, x 0 है, इसका मतलब a तो 0 नहीं हो सकता, a एम्पलीट्यूड है, Yes, sir. तो ये थीटा 0 होगा, तभी तो साइन 0 इक्वल्स टू 0 होगा, Yes, sir. राइट? सो ओमेगा Yes. टी प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। Yes, sir. अब अगर जब हमने टाइम चालू किया तब हमने उसको मीन पोजीशन पे ही रखा था, तो t भी 0 था, Yes, sir. तो t 0 था, इसका मतलब 5 की वैल्यू 0 होगी। Yes, sir. बट हो सकता है हमने यहाँ पे चालू नहीं किया, ये बॉडी यहाँ पे थी तब हमने चालू किया टाइमर, फिर क्या होगा? फिर वो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, तो ये उसका मोशन हुआ। Yes. कैसे मोशन हुआ? यहाँ से Yes, चालू sir. हुआ, ये ऐसे गया, ठीक है? ये SHM है क्या? Yes, sir. एग्जैक्टली ये SHM है। इसका मीन पोजीशन कहाँ पे? यहाँ पे है कि यहाँ पे? 1 की 2, 1 की 2, बताओ। Two पे. हाँ नहीं, अभी भी मीन पोजीशन 1 पे ही है, क्योंकि वहीं पे 4 0 होना है ना। Okay. तुमने चालू 2 से किया, हाँ, okay. लेकिन मीन पोजीशन अभी भी 1 है। Okay, right. तो जो तुमने चालू 2 से किया उसको हम कहेंगे दूसरे फेज से तुमने चालू किया, फेज है वो। तो एक Okay. यहाँ से ऐसे मूव कर Clear. रहा है और एक ऐसे मूव Yes, कर रहा sir. है, तो दोनों फेज Okay. डिफरेंस पे चलेंगी। जब ये यहाँ पे रहेगा तो ये यहाँ पे रहेगा, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे पहुंचेगा, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे पहुंचेगा, दोनों फेज डिफरेंस पे है। तो ये इनिशियल फेज से चालू हुआ, उस इनिशियल फेज को हम कहेंगे 5। आया? Okay. माया जैन समझ में आया? कितना अच्छे से समझाया? Yes, sir. Yes, sir. आया समझ में? अंश गुप्ता Yes, sir. आ गया समझ में? सो देयर इज दिस फेज डिफरेंस। अब मुझे बताओ ये मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा? ये ध्यान, अच्छा एक बात बताओ कि एक्सट्रीम पोजीशन में इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हाँ 90. करेक्ट, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 90, तभी तो ये मैक्सिमम होएगा ना। Hmm. साइन पाई बाय 2, सो बेसिकली ओमेगा टी
plus phi should be equal to pi by 2 for एक्सट्रीम, एक एक्सट्रीम का माइनस पाई बाय 2 भी हो सकता है, पाई जैसा भी है, ठीक है। और मीन पोजीशन पे कितनी होनी चाहिए? ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू 0. 0 होनी चाहिए। तो बेसिकली एक्सट्रीम पोजीशन और मीन के बीच में कितना फेज डिफरेंस हुआ? यहाँ पे 5/2 था और यहाँ 0 है, कितना फेज डिफरेंस हुआ? बताओ सर भाई, साइन की वैल्यू में कि एंगल? दो किसी में बता दो यार। 90 डिग्री का। करेक्ट, 90 डिग्री का डिफरेंस हुआ या फिर π/2 का डिफरेंस हुआ, है ना। तो एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच का जो फेज डिफरेंस हुआ वो हुआ π/2 या 90 डिग्री, ठीक है। आ गया समझ में? Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ कि अगर किसी चीज को हम मीन पोजीशन से चालू करेंगे, ये ऐसा है, उसको हमने एक को मीन पोजीशन से चालू किया और एक को हमने यहां से चालू किया। मीन पोजीशन का कोई और कलर डालते हैं, ये एक को हमने यहाँ मीन पोजीशन चालू किया, एक को हमने एक्सट्रीम से चालू किया। तो इसका इनिशियल फेज कितना होगा? 0, क्योंकि मीन पोजीशन का फेज 0 है, तो ये इसका इनिशियल फेज 0 हो गया। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? x इज इक्वल टू, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो x1 इज इक्वल टू क्या बनेगी? a sin ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी नहीं, ओमेगा टी प्लस 0, क्योंकि ये 5 इसका 0 है ना। और जो x2 की बनेगी, ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, तो एक ना प्लस 5 नहीं लिखेंगे, sin कॉस ओमेगा टी प्लस π/2, है ना। ये हो जाएगा इसकी इक्वेशन। आ रहा है समझ में? इसका मतलब अब किसी भी टाइम t पे इसकी पोजीशन ये रहेगी, किसी भी टाइम t पे इसकी पोजीशन ये रहेगी। आया समझ में गाइस? ठीक है, ये आया? जैसे यहाँ पे है और ये यहाँ पे, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है। चलो ये वाला सवाल सॉल्व करो। Particle starts from the mean position, move towards positive extreme as shown. Find the equation of the SHM. Amplitude of SHM is A. अरे ये तो बहुत, ये तो ऐसी ओरली बन जाएगा। बोलो मायस, बोलो क्या इक्वेशन होगी इसकी? ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 नहीं, 5 क्या है इसमें? स्टार्ट फ्रॉम 0 मीन होगा ना? पोजीशन है ना, हाँ एग्जैक्टली, तो 0 ही है, ठीक है। ए साइन ओमेगा टी हो गया। Sir, can you give a 2 minutes break? I need to go to the washroom. ओके, और किसी को ब्रेक चाहिए तो ले लो। तो माया जैन देखो यहाँ पे, चलो ठीक है, व्हेन एवरीबॉडी कम्स इन देन आई लिख लो। तो मेरे को भी पूछना था कुछ ऐसे। हाँ बोलो ना। अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आता तो डायरेक्ट आंसर मैं लिखूं, गलत होएगा क्या? नहीं गलत नहीं होएगा, बट अभी कुछ और समझा रहा हूँ मैं। वो जो आंसर दिया तुमने पार्टली करेक्ट है ना, अच्छा ठीक है। इसको निकालना कैसे हम देखेंगे अभी। So I locked out again. What are you all doing? Yeah, जब से since the time you left, we have completed a lot of things. Right now we are doing this question, so you can see if you are able to do this question. I explained the whole meaning of phase difference. So I'll Yes, put yeah. up the recording anyway. You can have the recording after this. But did you understand phase difference? I wasn't there, so I. No, I but till where lagged did you out. hear? I only heard to a sine omega t plus 5. What After is I asked plus it, 5? I wasn't there. Okay. Okay, I'll quickly go through this because it took quite a long time to explain anyway. Just a second.
Okay. Yeah. So, omega t plus phi. So I explained multiple things which you can watch in the recording, but just to move ahead, I'll just quickly tell you. Let's see, if something is moving like this. This is the body. This is body 1. Okay. Or in fact, let's say this is body 1 and this is how it's moving. So when it is here, what kind of movement will it have? It'll go like this and like this and like this, right? But if this is where, if we started at t equals to 0, if it was here, this is how it'll go, right? If at t equals to 0, if it was at position number 2, how will it go? It'll go from here, and then to here, right? So when you started from 2, will it be SHM? Yeah, it should be. Yeah, it'll be SHM because it satisfies that f equals to minus kx, Yeah. condition. And what will be the mean position? Will it be 1 or will it be 2? It'll be 2. The mean position will be 2. No, mean position will still be 1 because that's where f equals to 0. 2 is just the starting point. This is the starting point. But mean position is still this because उसके around ही वो घूम रहा है ना, तो यहाँ पे force 0 यहीं पे हो रहा है, ठीक है? But both 1 and 2 are in phase difference. So at 1, if at t equals to 0 it was at 1, so what will you say? You'll say a sine omega t plus phi is equals to x, but x क्या है 1 पे? 0, which means a cannot be 0. So sine omega t plus phi has to be 0, which means sine omega t plus phi. This has to be 0. So at what places can sine be 0? It can be 0 at 0 or at pi. 180. Right? So it can be either 0 or it can be pi. So basically that's how you figure that's the phase. And if it is at the extreme position, then this has to be maximum, which means अंदर वाला जो है should be pi by 2. Yeah. Right? So yeah. So that's how. So basically that's what is phase. So basically phi is the initial phase. Okay. What is a in the equation? Amplitude. Because that's the maximum value for a, right? That is how maximum it will go, f or x. Okay, cool. Right? And minimum will go is minus a. Right? Yeah. So yeah. Now we are doing this question. Do this question now. Particle starts from mean position and moves towards positive extreme as shown below. Find the equation of the SHM. Amplitude of the SHM is, of course, what is the amplitude? ये 0 है, ये a है, ये minus है, तो amplitude is a. ठीक है? चलो, कैसे बनाओगे इसको? So you write the equation सबसे पहले कि because it is an SHM, x is equals to a sine omega t plus phi. अब हमको क्या क्या पता है? हमको ये yeah. What is phi in the equation? Is that the phase difference? This is the initial phase. Initial phase and omega by omega. When t is equals to 0, what is the phase? So ये 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा. तो a sin phi हो जाएगा initial phase. Okay. Okay. Anyway, so it says particle starts from mean position, which means at t equals to 0, x is equals to 0. Right? So 0 is equals to a sine 0 plus phi. Right? So 0 equals to a sine phi, which means sine phi has to be 0, which means phi can be either 0 or pi. Hello. Acha, listen guys. Are you guys there? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर हमको इसकी पोजीशन ये पता है x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, तो हमको किसी भी x पे उसकी वेलोसिटी भी पता चल सकती है ना. v विल बी व्हाट? v विल बी dx by dt, है ना? तो कितना हो जाएगा वेलोसिटी? कितना हो जाएगा? a ओमेगा A cos omega t हाँ. plus phi. करेक्ट. a ओमेगा cos
ओमेगा Omega टी t. प्लस 5। तो ए ओमेगा उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है, राइट? तो वेलोसिटी ये नोट कर लो, v विल बी इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। जहां पे तुमने उसकी पोजीशन की इक्वेशन नोट की होगी वहीं पे वेलोसिटी की भी इक्वेशन नोट कर लो, v विल बी इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है? तो अब यहाँ पे एट टी इक्वल्स टू 0 उसकी वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में थी? राइट डायरेक्शन में थी, क्योंकि पाए फिर यहाँ पे भी हो सकता है ना, वो या इस तरफ भी तो जा सकता था, क्योंकि मीन पोजीशन पे दो जगह वेलोसिटी हो सकती है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव, मैक्सिमम है बट पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए कॉस क्या होना पड़ेगा? t इक्वल टू 0 पे पाई बाय 2। पाई बाय 2 होना पड़ेगा क्या? हेलो, सर 0 नहीं होना पड़ेगा? करेक्ट। और किसी ने कुछ नहीं बोला। अंश गुप्ता कम इन। अंश गुप्ता कम इन। यस सर। ये समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा 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 बहुत सर। तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन समझ में आई? कैसे आई? हाँ, सर नहीं आई यार। वेलोसिटी इज dx by dt ना, उसके बाद ये अगर x इज a sin ओमेगा t प्लस 5 इसको डिफरेंशिएट करोगे t से तो क्या आएगा? a cos ओमेगा t प्लस 5, फिर अंदर t को फिर ओमेगा बाहर निकलेगा, तो a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5 आएगा इसको डिफरेंशिएट करके। हाँ, आया क्या अंश? हाँ आ हाँ गया? सर। तो ये v वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5। नाउ अगर जब पार्टिकल ने स्टार्ट किया था तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी कि जीरो वेलोसिटी रहेगी? सो 0। जीरो रहेगी तो मूव कैसे करेगा भाई? उसको हमको देना पड़ेगा ना मैक्सिमम वेलोसिटी। बताया था ना शुरुआत में कि अगर उसको मूव कराना है ऐसे, जब मैंने अभी अपने पेन को भी हिला के ऐसे उसको फ्लिक किया था, इसको तुम मैक्सिमम वेलोसिटी दोगे तभी तो ये मूव करेगा, फिर ये वापस आएगा, फिर ऐसे होएगा, राइट? तो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी है और t इक्वल टू 0 है, तो उसकी वेलोसिटी किस तरफ होगी? राइट तरफ। यस। अगर वेलोसिटी राइट तरफ होगी मैक्सिमम, तो ये इसका वैल्यू, अच्छा ये बताओ वेलोसिटी कब कब मैक्सिमम हो सकती है? अंदर वाला जब क्या हो? कॉस इसकी वैल्यू 1 चाहिए ना मैक्सिमम होने के लिए, ए 90 ओमेगा होने के 90 लिए। तो 90 होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ पाई क्या होना 90 चाहिए? पाई बाय 2 ओके, सो cos 90 इज इक्वल टू व्हाट? 1 cos 90 इक्वल टू 1 और sin 90 इक्वल टू 0। क्या बात कर रहे हो भाई? इतने हिंट तो मैं दे रहा हूँ कि गलत बोल रहे हो। cos 90 इज इक्वल टू 0 मेरे भाई। नहीं, यस। sin 0 इज 0 ना, cos 0 Yes. इज 1। तो ये 0 होना, ये 0 होना चाहिए या फिर पाई होना चाहिए इसकी वैल्यू। लेकिन पाई में क्या होगा? माइनस हो जाएगा वेलोसिटी। लेकिन हमको t इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव वेलोसिटी चाहिए, इसका मतलब ये 0 ही हो सकता है, पाई नहीं हो सकता। आया माया जैन समझ में? यस सर। तो ये नीचे दो ऑप्शन आए थे ना अपने पास विद x से हमारे पास 0 भी आया था एक ऑप्शन और पाई भी आया था। तो अब हमने वेलोसिटी वाला ढूंढा कि वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए कि नेगेटिव होनी चाहिए। उससे हमको पता चला कि 0 ही होएगा, पाई नहीं हो सकता। ठीक है,
अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो ये इसका सोल्यूशन देख लो। ये लो, समझने की कोशिश करो और कुछ भी कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा वेव्स का फाउंडेशन है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो ये वाला भी, इस साल का वेव्स भी नहीं बनेगा, अगले साल का ज्योमेट्रिक ऑप्टिकल वेव जो भी है वो सारे कुछ नहीं बनेगा। So can you explain it one more time? Which parts? The whole thing. I mean, I'm kind of lost. But till where did you understand? I got the equation, but after that, I'm not able to implement it. Which equation did you understand? I got the a sine theta sine omega t plus phi. I got That is what it means, that is the but I don't. equation for what? Is the equation for the getting the displacement of the particle in SHM, right? That's the equation for x, which is displacement. Okay. Now we want to find v. What is the formula for v? Displacement upon time. Then dx by dt. You can't just say displacement over time because that will become a sine omega t plus phi by time. That's not how you find velocity. Velocity is dx by dt. Okay. Because here x is changing as per t. Right. So now if you you what? You integrate the equation. Integrate कैसे करेंगे भाई? You want already have x. You want to find dx by dt. So you'll differentiate. Right, but right. Sorry, my bad. Okay. So now when you differentiate the equation for x, what will you get? You get just a second. A omega cos omega t plus phi. Okay. So you got the velocity as a omega cos omega t plus phi. So what will be the maximum velocity for this particle? When cos omega t plus phi is 1. So what will be the maximum velocity? A omega. Correct. So a omega is your maximum velocity. Okay. Okay. Now read this question. This question says that the particle starts from mean position and moves towards positive extreme as shown. Find the equation of SHM. So what is the information that we're getting? We're getting the information that at t equals to 0, it was at mean position. Mean position पे x कितना था? At mean position, but Yeah. A omega sine A sine t plus phi. No. What is x? What you said displacement? Displacement Yeah, from where? From 0. So displacement of mean position, right? So at x is equal to 0 at mean position. It has nothing to do with time. At mean position, x is 0. Khatam. So now so at t equals to 0, x is 0. That's what we figured because it's starting from mean position. It starts. So t equal to 0, mean position, which means x equal to 0. Got it? So now you put it in this particular formula, x equals to a sine omega t plus phi. That gives us 0 because x is 0. Then a sine omega t is 0. So a sine phi, right? 0 equals to a sine phi. Which means phi can either be 0 or it can be pi. Okay. Right? Okay. Yeah. But is it really possible in both the scenario? So we'll see one more thing. We'll see the equation for the velocity. So the formula for velocity which you just derived was v equals to a omega cos omega t plus phi, right? Yeah. Now at mean position, what is the direction of the velocity? Is it positive or negative? Positive. Correct. It is positive. So if that has to be positive, a omega cos omega t plus phi should be positive. Yeah. Okay. Actually omega t to gaya.
0 हो गया वो, तो a omega cos phi should be positive. Okay. Now when can this be positive and maximum also? It has to be positive and maximum. So maximum will be when cos phi is equals to 1. Cos One. phi can be 1 at in 90. two scenarios. Yeah. Where? Um, what was it? So it can It's be at 90. actually plus 0. 1 and minus 1. Okay. So it will Yeah. be plus 1 only at when phi is equals to 0. Because at phi Yeah. is equals to pi, it will be minus 1, which we do not want. Minus Yeah. 1 would mean that it has already gone to extreme position and coming back now, which we do not want. Right? Hence, we figure that phi ki value is 0. So put this phi ki value here. So the equation will come out to be x is equals to a sine omega t, because phi is 0 now. So that's your final equation. Okay. ठीक है. Similarly, for particle moving towards negative extreme, अगर हमने इसको यहां से राइट की तरफ नहीं चलाया होता, उसको बोलते हैं हम कि तुम लेफ्ट से जाओ, अभी ऐसे तुम्हारा इक्वेशन बनना है. You know, your SHM is going to be like this, Yeah. like this. Then the equation will be x equals to minus a sine omega t. Yeah. Correct? Yeah. Yeah. Everyone, did you get it? अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो हाथ उठाओ. Because this is the basis of anything that you're going to do further. ये अगर अच्छे से समझ में आएगा तो आगे की चीजें अच्छे से बनेंगी, नहीं तो नहीं बनेगा. ठीक है, चलो इसका बनाओ, ये बढ़िया है. राइट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम फॉर द सिचुएशन शोन बिलो. ये मेरे को चैट में देंगे सब लोग आंसर. बहुत ही आसान है सवाल, करो. बता रहा है t इक्वल टू 0 पे x की क्या वैल्यू है और उसकी वेलोसिटी किस तरफ है वो भी बता रहा है. सो ध्यान से. So x equals a by 2, right? हाँ, X equals a by 2, right? x equals to a by 2, yes, at t equals to 0. Okay.
Ishita, is that pi or phi? What is it? The pi. Sin pi. So sin pi की तो वैल्यू पता है ना तुमको? Why you writing pi? Also, Sid Merchant, your so Ishita, the equation cannot be zero ना. X is equal to 0 हमेशा 0 पे थोड़ी खड़ा रहेगा. इसका इक्वेशन निकालना है तुमको कि ये इसका किसी भी टाइम t पे हम x कितना होगा उसका. Sid Merchant, your equation does not depend on a at all. तो बस चलता ही रहेगा मतलब. There is no a. Whereas यहाँ पे we can clearly see that the amplitude is a. बाकी लोग से बन ही नहीं रहा लगता. अंश गुप्ता. Ansh Gupta has written something, okay. Dhriti. Dhriti. Mayas has written something, okay. So Dhriti's उसकी screen hang हो गई है. Okay. ठीक है. So this is how you solve it. At t equals to 0, x is equals to a by 2. So a by 2 is equals to a sin phi. क्योंकि t 0 हो गया है ना. तो phi के दो वैल्यूज हो सकते हैं. 30 डिग्री भी हो सकता है, 150 डिग्री भी हो सकता है. Also at t equals to 0, velocity नेगेटिव है ना. तो phi फिर 150 डिग्री होना पड़ेगा. आ गया? सर हम्म. एक डाउट है, मतलब मेरा फर्स्ट स्टेप तक ठीक था, 5 मैंने 30 और 150 कंसीडर कर लिया, और फिर ऑल्सो टाइम इज इक्वल्स टू 0 मैंने v पॉजिटिव कंसीडर करा. मतलब ये कैसे पता लगेगा पॉजिटिव कंसीडर करना है? लिखा है ना उधर. मैंने बोला उस टाइम पे बताया भी था कि ये देखो ये दिखा रहा है ना कि t इक्वल्स टू 0 जब भी पे लेफ्ट a हैंड by 2 साइड जा दिया. रहे हैं तभी हमेशा नेगेटिव. हाँ ये जब भी नेगेटिव है ना, left hand- तभी तो माइनस है मेरे भाई. नहीं, बिकॉज वो मेरे को पॉजिटिव ए वाली साइड लगा तो मैंने उसको पॉजिटिव लिया. ऐसा कौन सी वाली साइड पॉजिटिव है? मतलब मीन पोजीशन के राइट हैंड साइड था ना. हाँ तो बट ये तो जा तो उससे फर्क नहीं नेगेटिव रहा पड़ता, है ना. मतलब वेलोसिटी पे जब भी ठीक है. डायरेक्शन इसका नेगेटिव है ना. ठीक है सर. वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव है. दैट्स व्हाई. ओके. तो किसी का भी आंसर सही नहीं था. तो बट हमने इक्वेशन लिखनी थी ना, बस 5 फाइंड करा. अभी तो पॉइंट करके तो इक्वेशन लिखोगे ना यहाँ पे. अब क्या a आएगा sin इक्वेशन? ओमेगा t प्लस 150 आएगा ना. 150 नहीं, मतलब उसको पाई के टर्म्स में क्या आएगा? पाई के टर्म्स में विल बी 5 पाई बाय 6. हमने पाई बाय 6 किया उसको, सो दैट्स रॉन्ग है ना. डन. आया समझ में पीपल? बट फिर भी बाकियों ने ऐसा क्यों लिखा? चलो अंश गुप्ता का समझ में आया, माया का समझ में आया, इशिता कुछ रैंडम लिखा था. सिद्ध मर्चेंट कम इन. Yep. Why do you write 2 sin 5? So your equation is not depending on t at all. So t का तो component ही नहीं ना फिर. I kind of equated it to that, and then I So it's not depending on a, it's not depending on t, which it needs to depend on. तभी तो equation Yes. बनेगी उसकी.
ओके, वेलोसिटी कैसे निकालना है मैंने समझा दिया था, v इक्वल्स टू a ओमेगा cos ओमेगा d प्लस पाई, ठीक है। ओके अब ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैसे आया, ये बिकॉज cos ओमेगा d प्लस फाइव कैन बी रिटर्न एज a cos ओमेगा d प्लस फाइव कैन बी रिटर्न एज रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे कैसे हुआ बताओ? √1 minus sin square. हाँ, बिकॉज x इज एनीवे a साइन ओमेगा d प्लस फाइव, तो ये नोट कर लो। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि किसी पोजीशन पे है तो वहां पे कितनी वेलोसिटी है, वो डायरेक्टली निकल आएगा विदाउट टाइम। तो अगर टाइम दिया हुआ है तो इससे निकालोगे, और अगर पोजीशन दी हुई है तो यहां से वेलोसिटी निकालोगे, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से। इसको नोट करना है तुम्हें। एंड t इज नोन व्हेन x इज नोन, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा ये भी बना लो, ये नोट कर लो, हाफ इलिप्स वेलोसिटी का ग्राफ। सब एक्सेलरेशन अब कैसे निकालोगे? v को कर दो, मेरे को बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा। अब v को कर दो डिफरेंशिएट, बताओ खुद से करके एक्सेलरेशन कितना होगा। चैट पे लिख के बताओ, देखते हैं कौन पहले बनाता है। बताओ। माइनस is written something good. वेरी गुड मायस, वेरी नाइस। बाकी लोग का वेट कर रहा हूँ मैं, जल्दी बताओ। इशिता, यस सर, 1 है। क्या कर रही हो अभी? किसको क्या कैसे निकालोगी एक्सेलरेशन? सर बाय t। बाय सर v by t ना। v by t, acceleration is dv by dt when, because v is dependent on t na, you can't just do v by t.
हाँ हाँ? सर। तो dv by dt करो. Sid Merchant, how? So see d by dt of a omega cos omega t plus phi. अब इसको करेंगे तो a omega तो निकल गया बाहर. cos omega t plus phi क्या बनेगा? माइनस sin omega t plus phi. फिर अंदर ओमेगा को ओमेगा t को भी करोगे तो ओमेगा फिर बाहर आएगा. विल बिकम a omega square माइनस sin, है ना? तो a omega square into minus sin omega t plus phi. तो it will come out to be this. Acceleration equals to minus omega square a sin omega t plus phi और this. तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. a equals to minus omega square x. ठीक है. नेगेटिव शोज अस कि वो हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में रहता है. नोट कर लो इसको. ये पूरा डेरिवेशन नोट कर लो. डेरिवेशन भी क्या ही है, छोटा सा ही है. डन. ठीक है, आगे बढ़े. तो मैक्सिमम कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर ए, क्योंकि एक्स की वैल्यू मैक्सिमम ए हो सकती है ना. तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन होगा ए ओमेगा स्क्वायर. ग्राफ ऑफ एक्सेलेरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. तो ये ऐसा, ठीक है ना, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हुआ माइनस ओमेगा स्क्वायर से. तो ये स्लोप ऐसा रहेगा. इसको भी नोट कर लो. ग्राफ ऑफ एक्सेलेरेशन ए वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. तो ये ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है. तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इसका स्लोप हो गया, है ना. तो मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर ए तक जाता है, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए तक, 0 से लाइक दिस. डन. चलो. अब वेलोसिटी जो है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. और कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, है ना. और ये भी है एक्सीलरेशन इज ये. तो इसको एक बार ही थोड़ा ऐसे नोट कर लो ताकि अलग अलग वेरिएशन उसके पता हो. ये फॉर्मूले हैं अभी याद करने वाले. हो गया, नोट हो गया. चलो. तो ये डिफरेंस हो गया. अब तो अगर x ऐसा चल रहा है तो उस टाइम पे v ऐसा चलेगा पाई बाय 2 के फेज डिफरेंस पे, है ना. और एक्सेलरेशन ऐसा चल रहा है. डन. नोट कर लो इसको भी. हो जाए तो हाथ उठा देना.
हाथ उठा दो अगर हो जाए ये नोट तो। इशिता ने हाथ उठाया। प्रीति ने हाथ उठाया। मायास ने हाथ उठाया। अंश गुप्ता। अंश गुप्ता। अंश गुप्ता, are you there? ओके ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। Question of a particle executing simple harmonic motion is x equals to blah blah. Write down the amplitude, time period, maximum speed. Also find the velocity at t equals to 1 second. चलो अंश गुप्ता, are you there? Okay. Priti has given an answer. एम्पलीट्यूड तो निकाला है 5, ठीक है, ओके गुड। टाइम पीरियड कितना है इसका? ओमेगा कितना होता है? ओमेगा 2 पाई बाय टी होता है। 2 सेकेंड। तो टाइम पीरियड भी आ गया। फिर मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? ए ओमेगा। फाइन कर डाल लो। 5 पाई हो गया है ना, कूल। और फाइंड द वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड। भैया तो क्या सही निकाला तुम लोगों ने फिर, है ना? वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई। बस खत्म हो गया, निकल आएगा यहाँ पे, है ना? डन, कूल, सही है। तो अब बन रहा है तुम लोगों से, ठीक है? ओके चलो एग्जाम्पल 5 वाला सवाल करो।
निकालो आंसर निकालो. सर Yeah, tell me. फर्स्ट 3 पार्ट्स हो गए, फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है. Okay, let everybody do it and then we'll figure.
Send na the answers. Mayas, whatever you got, send. Okay, what about others? बाकियों को नहीं आया क्या? So I'm still solving the part. Okay, do it. So can I say the answers like Why? क्योंकि बहुत लंबा टाइप है. Okay. Let's see. Just a second. Yeah. A particle executing simple angular frequency of light and amplitude 10. Find a time period. Time period तो निकल आएगा, है ना? क्योंकि ये दिया हुआ है angular frequency. 2 pi by t is equals to this. So t equals to 2 1 pi by second. 6.28. 2 pi by 6.28. ठीक है? तो 1 second आया. Okay. 10 is Maximum 0.628 meter per second. maximum speed कितनी होगी? maximum A speed. ओमेगा. तो 10 हो गया A और ओमेगा है 1. तो A ओमेगा खत्म, है ना? 0.628 meter per centimeter. second. 0.628. ठीक है. ओके. तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो गया? A ओमेगा स्क्वायर, है ना? यहाँ से आ Yes. गया 4. ओके. फिर क्या बोला? D, द स्पीड व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन. तो x दिया हुआ है, तो v हमने क्या निकाला था? v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, है ना? तो यहाँ पे x की वैल्यू डालोगे 6 तो आ जाएगा. ठीक है, कितना आएगा? 50. 50.2 centimeter per second. Speed at t equals to 1 by 6 seconds, assuming that the motion starts from rest at t equals to blah. So a omega cos omega t plus 5, है ना? तो from rest से आ रहा है मतलब 5 And equals that to is 0. 54.4 centimeter per second. हाँ सही है. माया इसमें तो कौन सा वाला नहीं बना था तुमसे? सर एक्चुअली मैंने फर्स्ट 3 हो गए थे और थर्ड वाले में बहुत सिली मिस्टेक किया. मैंने 0.1 का स्क्वायर कर दिया 6.28 की जगह. और फोर्थ वाले में मैं v के फॉर्मूला से निकाला, दूसरा कर रहा था मैं, मतलब v का इक्वेशन यूज कर रहा था, वो टाइम के रिस्पेक्ट में जो इक्वेशन दिया हुआ है. तो इसलिए नहीं आंसर आ रहा था. उससे ऐसे आंसर आ सकता है क्या? आ सकता है उससे भी, बट उसमें मतलब हमारे मेरा को आ रहा था cos किससे फिर से बोलो, 6.28. किससे आना चाहिए आंसर? जो v का टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन है, v का हाँ, v तो इज उससे इक्वल्स कौन टू सा a वाला? cos ओमेगा. हाँ, v इक्वल्स टू a ये cos v इज हाँ इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस 5. हाँ. ये पाएगा मैं ना? फोर्थ क्वेश्चन में यूज कर रहा था. नहीं, फोर्थ में नहीं यूज करना ना. बार बार उसमें लिखा भी था मैंने अभी जब नोट करा रहा था कि जब x गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, t गिवन होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. यहाँ पे वो नहीं यूज करोगे, नहीं तो फिर बहुत लंबा पड़ेगा. हाँ भाई, मतलब उससे आंसर नहीं आ रहा था, मतलब उसमें कुछ और कैलकुलेटर यूज करना पड़ता. हाँ, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन तो हो गया था. लास्ट क्वेश्चन हो गया था.
एंड में होगा, मैंने आंसर नहीं भेजा। ठीक है, फिर बाकी लोग तो हैं नहीं यहाँ पे, अब क्या कर सकते हैं, तो फिर बंद करते हैं आज के लिए। And I'll put this recording up, and you guys also revise. Next time we'll go very rigorous. Yeah, this is the basis of 4-5 chapters which will come आगे, ठीक है? So take care. I'll send you. वैसे इसमें send करने का कुछ है नहीं. Should I send you some questions to practice? Yes, sir. ठीक है, I'll send you some questions to practice. ठीक है? चलो. All right then. Take care. Bye, sir. Thank you, Bye sir. bye bye.